جو چیز مختلف نظر آ رہی ہے وہ مختلف قوانین بنے، الیکشن کمیشن کو امپاور ایک طرح سے کیا گیا. پاکستان میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا جتنا اس کے پاس ہونا چاہیے. انڈیا کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ دیکھیں وہاں پر نگران وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ڈائریکشن میں قدم ہے جہاں پر تاریخ کا اختیار بھی اب الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہے اور یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے. پنجاب کے انتخابات 14 مئی کو ہو جانے چاہیے تھے، نہیں ہوئے. جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے، گو کہ رشید چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بائی اینڈ لارج پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہے، اس کے اوپر تمام پارٹیوں کے اعتراضات ہیں. آج بھی ہیں اور لوگ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، لوگ چیلنج کر رہے ہیں. لٹیگیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے اور 2 لیول ہیں، ایک تو پولیٹیکل لیول ہے کہ اس حوالے سے ہم دیکھیں، اور دوسرا ٹیکنیکل ہے اور قانونی ہے. 10% کی شرط ہے کہ جناب جو پاپولیشن ہے 2 حلقوں کے درمیان 10% سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ دیکھیں اپر چترال اور لوور چترال کی ٹوٹل پاپولیشن 5 لاکھ کے 5.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. ایک نشست ہے وہاں. باجوڑ میں 13 لاکھ کے 12,75,000 کی آبادی پر ایک نشست ہے، وہ آج بھی موجود ہے. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ کتنی کنٹروورسی ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، وہ اپنے ہی طے کیے ہوئے قوانین آئین کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہماری نظر میں دیر از اینف ایویڈنس، کافی شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن انہوں نے اپنے لیے کچھ معیار طے کیے ہیں. معیار ان کے لیے الیکٹورل رولز ہیں. الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن نے نہیں بنایا، لیکن اس کی کنسلٹیشن رہی تھی ساتھ. اور دوسری بات جو ہے سب سے اہم ہے، ان کا ایک اسٹریٹجک پلان ہے، 3rd اسٹریٹجک پلان 2019-2023. اس کے مطابق انہوں نے اپنے لیے بہت سارے معیارات طے کیے. اگر الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو ہم ان معیارات اور اپنے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہے، تو صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹیزن ہے. تو اب اس کے لیے ایک پارٹی ہے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. اس وقت اگر آپ جتنے بھی آپ ایڈ آرٹیکل آج تک چھپے ہیں، چاہے وہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپ رہے ہیں، ڈور میں چھپ رہے ہیں، نیوز میں چھپ رہے ہیں یا آبزرور میں چھپ رہے ہیں، ان میں ایک کامن چیز آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کسی پارٹی کو پورے پاکستان میں نہیں ہے، کسی پارٹی کو کسی صوبے میں نہیں ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی ہے جو اپنی ریلیز نہیں کر سکتی، اپنے جلوس نہیں نکال سکتی، ان کے الیکشنز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پارٹی کو کہا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں 20 دنوں کے اندر، اور 20 دنوں کے اندر تو الیکشن کا شیڈیول آنے والا ہے. تو یہ جو ساری ڈیلیمیٹیشن آپ کو معلوم ہے، ڈیلیمیٹیشن جو ہے، اب حافظ آباد کی آبادی، حافظ آباد کی میونسپل کمیٹی کا جو ایریا ہے اس کو گجرانوالہ میں جا کے ڈال دیا ہے. ٹھیک، حافظ آباد کی اپنی آبادی 11, 12, 13 لاکھ ہے. اس کے 2 حلقے تو نہیں بن سکتے، لیکن چترال کے تو 5 لاکھ پر ایک حلقہ بن سکتا ہے. اس کو گجرانوالے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں، اگر آپ ڈیلیمیٹیشن کو کسی حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑے ویئرڈ قسم کے ٹرینڈز ہیں. کہیں آپ نے اختیار ملا ہے، لیکن ابھی بھی جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اس اختیار کو انڈیا کے الیکشن کمیشن کی طرح غیر جانبدار طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا. پاورز ہیں، لیکن ان پاورز کو پارٹیزن شکل میں استعمال اختیار کا مسئلہ نہیں ہے جو اس سے پہلے کمپلینٹ ہوتی تھی. میں ذرا فوزیہ صاحبہ سے پوچھ لوں. فوزیہ صاحبہ، آپ کو لگتا ہے اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا؟
देखिए रहमान, क्या मुख्तलिफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कौन सा चांद जमीन के लाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारा तो सिर्फ एक ही जो है वो मेरा ख्याल है होना, जो सवाल भी जारी बात है कि जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है क्या वो डिफरेंटली होगी या नहीं होगी। इलेक्टोरल एक्सरसाइज डिफरेंट नहीं हो सकती। इलेक्टोरल एक्सरसाइज कास्ट एंड स्टोन प्रोसेस है, वो उसका एक कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, और जब इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है तो 54 डेज का एक सेट प्लान है जो इलेक्शन एक्ट में दिखा है, वो उसी तरह होगा। सिर्फ देखना यही है, मैं रशीद चौधरी साहब की बात से एग्री करती हूँ कि हमारे पास इशारे क्या आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकली देखना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में बीइंग एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट, मुझे इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी के साथ क्या हो रहा है। पहले अगर आप इलेक्शन कमीशन के तकनीकी मयार की बात कर रहे हैं तो मुझे ये देखना है क्या वो प्री रेक्विजिट पूरे कर रहे हैं। उसका पहला प्री रेक्विजिट डिलिमिटेशन था, एंड आई एग्री उसमें बाय एंड लार्ज जो है वो इतनी ज्यादा शिकायत नहीं आई। जो ये बात अब है कि जिनको शिकायत आई हैं वो जा रही हैं, एक बात तकनीकी लिहाज से ये भी याद रखने की जरूरत है कि जब ड्राफ्ट डिलिमिटेशन अनाउंस हुई थी तो 30 दिन का पीरियड था एतराजात जमा कराने के लिए। जो फाइनल लिस्ट आई है वो उन एतराजात को दूर करके आई है, उसके बावजूद अगर कोई रह जाएगा तो वो जाएगा। नंबर 2 बात, डिलिमिटेशन को हम हमेशा सिर्फ इससे रखते हैं कि एक हल्के की आबादी के साथ उसका रखते हैं। आपको मालूम है इलेक्शन एक्ट में पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्री लिमिट थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, अब उन्होंने बढ़ा दी। अभी बारी साहब ने हाफसाबाद की एग्जांपल दी, हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शेयर, टेक्निकल शेयर कैलकुलेट होता है। हाफसाबाद 1.46 के शेयर पे है, 1.60 पे होता है तो वो 2 पे जाके मिलता है, इसलिए उसके कुछ पार्ट्स गुजरांवाला के साथ मिलाए गए जो 5.48 था ताकि उसको बैलेंस आउट किया जाए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, व्हाइल आई वुड हैव लव टू सी कि हाफसाबाद और उसको मिलाकर और बड़ा कर दिया जाता और उसमें से 6 की बजाय 7 नशिस्तें भी निकल सकती थी, मगर सिर्फ आबादी के बुनियाद पे नहीं होता। और तीसरी बात, अगर आप 1 सेकंड की इजाजत दें तो वो ये कि डिलिमिटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आबादी और आपके बरादरी और वोट आपके कट गए, आपकी एक गली ऐड होने का मतलब है कि आपकी कैंपेन फाइनेंसिंग के ऊपर बोझ भी बढ़ गया, आपको आउटरीच के लिए लोग भी चाहिए। उसी तरह से ये तो इट हैज अ मल्टी डायमेंशनल इशू, मगर मैं फिर भी समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन प्री रेक्विजिट भी पूरा कर रहा है। इस वक्त जो टाइमलाइंस हैं वो उसको मीट भी कर रहा है, ओवर एंड ओवर वो ये भी कह रहा है कि हम टाइम पे कराएंगे। सो आई काइंड ऑफ गो विद देयर कमिटमेंट। अच्छा, मुझे टेक्निकली जो है वो बताइएगा, क्योंकि हम ये फॉर्म 45 वाली बहस जो है वो देख चुके हैं, फिर दरमियान में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की गई आई वोटिंग के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो मशीनें जो है वो उनके भी हमने प्रोटोटाइप्स देखे, लेकिन वो मामला कुछ आगे बढ़ नहीं सका। तो तकनीकी एतबार से क्या आपको कोई बेहतरी इस मरतबा प्रोसेस में नजर आ रही है, या फिर ये उसी तरह का प्रोसेस है जिस तरह का 2018 के इलेक्शन डे पर था? मुझे तकनीकी लिहाज से थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। एक तो नंबर 1 उसकी एग्जांपल मैं दूंगी, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो इलेक्शन कैंपेन मॉनिटरिंग का है, वो इम्प्रूव किया है उन्होंने, उसको ज्यादा स्ट्रक्चर किया है। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जो हमें सुनने में भी आ रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, और जो लास्ट टाइम 594 डिस्ट्रिक्ट बेस्ड मॉनिटरिंग कमेटीज इलेक्शन कमीशन ने फील्ड की थी, वो इस दफा मोर देन डबल होंगी। दैट इज 1। दूसरा, आरटीएस के बैठने की बहुत बड़ी वजह थी कि वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मैंडेटरी कर दिया था कि आप पोलिंग स्टेशन पर से उसके रिजल्ट की तस्वीर लेकर जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे आप पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ जगह तो जाहिर है थोड़ी सी हैंकी पैंकी हुई, मगर एक वजह वो भी थी, वहां पर आइदर नेट अवेलेबल नहीं था, उसमें आपका सिस्टम चोक कर गया। अब उन्होंने कहा है आप तस्वीर ले लेंगे, और वो जो नया उन्होंने ऐप बनाया है उसमें जब मोमेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तस्वीर लेगा तो वो टाइम स्टैंप हो जाएगा। तो आपने तस्वीर ले ली, वो अपलोड नहीं भी हुआ तो आपको रात के 2 बजे से पहले डीआरओ के ऑफिस में पहुंचना है, उसमें आपकी स्टैंप के साथ आ जाएगा, तो वो भी पता चल जाएगा कि आप कहां थे और कहां रुका। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो 2 बजे तक की शर्त आयद की गई, वो भी एक जो डीआरओ है उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि वो काइंड ऑफ मॉनिटर रखे कि कहां है मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, धुंध में गायब ना हो जाए। राइट। अच्छा रशीद चौधरी साहब, ये आरटीएस वाला मामला ये
यहाँ पर आपको लगता है ये आरटीएस फिर तो नहीं बैठ जाएगा, या फिर तो नहीं कोई इस तरह का मसला होगा जैसा 2018 के इंतखाबात में हुआ था? जो अगस्त में अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने इलेक्शंस एक्ट में, उसमें सबसे ज्यादा जो रिफाइन किया गया है वो रिजल्ट ट्रांसमिशन का सिस्टम है। अच्छा। उसमें जिस तरह फौजिया साहब बता रही थी कि उसमें एक तो उस खास टेक्नोलॉजी का तज़किरा नहीं है, लेकिन वो पहुंचाया जाएगा रिजल्ट, और 2 बजे तक जितना रिजल्ट हो जाएगा वो हर हाल में पहुंचाया जाएगा। और फिर उसके बाद 10 बजे की डेडलाइन दे दी है अगले दिन की कि 10 बजे तक अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है तो 2 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन आए हैं उसका रिजल्ट आ जाए, और अगले दिन 10 बजे तक हर हाल में उस कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा रिजल्ट आए। तो ट्रांसमिशन जो सिस्टम है ये तो पिछली दफा भी थी, लेकिन इस पर पिछली दफा नहीं थी। नहीं, पिछली दफा नहीं था। पिछली दफा नहीं था। 2 बजे तक डेडलाइन थी। अच्छा। पिछली दफा इस तरीके से बाउंड नहीं था। जी। हाँ, बाउंड नहीं था, लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तो हवाले से हमने बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं